हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 11th का जो लास्ट यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the new videos. When we are talking about the training in sports, without training for a sports person nothing is possible. He cannot achieve that level of performance, or without training he cannot learn the skills, either that is a fundamental skill or that is an advanced skill. And basically when we are talking about a scientific training, that is a controlled procedure by which we can modifying the behavior, we can modifying the skill or physical condition, physical, mental, as well as his personality of a sports person, or we can make a player fit for competitions and for the games. Generally it is a controlled manner of training or of physical activities by which we can achieve a level of performance, or by which we can achieve a set aim or goal in the field of physical activity during competition or during any sports performance. When we are talking about the training, basically there are some aim, or we can say there is some objectives of training. Whenever we are going to make a training schedule or a training program, a coach or trainer will keep these objectives in the mind. Basically in that, the first is to train physical fitness components. For a sports person, physical fitness component is must. Without these components, without these physical fitness aspects, he cannot survive in the field of physical activity. When we are talking about the physical fitness component, there are 5 physical fitness components: speed, endurance, strength, flexibility and agility. These are the 5 physical fitness components, and these are the fundamentals components for any physical activity. Without endurance, without strength, without speed, or without coordinative abilities, any sports person cannot perform any physical activities. So even for the general survival, we need a limited amount of strength, endurance, speed, flexibility and coordinative ability to perform our daily routine work. Second thing, while making any sports training program, the second motto is to train technical component. When we are talking about the technical components or technical skills, these components includes the advanced skills, or even fundamental skills and advanced skills both. Suppose, and these skill depends upon the games and the nature of the games. Like suppose for a basketball player, it is necessary to teach that player dribbling, low dribble, high dribble, chest pass, bounce pass, overhead pass or lap shot. These are the basic skills, or these are the technical components of a player. Just opposite for a cricket person, bowling, batting, fielding, catching, these are the technical aspect or the technical components of the player. Basically when we are talking about the physical fitness, that involves gross motor development, and when we are talking about technical components, that involves fine motor development. Then the third topic is tactical component of that game, of that the skill.
सी जब हम टैक्टिक्स की बात करते हैं, दिस इज अ वे हाउ द that athlete is going to implement his skills during game or during matches. Like स्किल्ड होना एक अलग बात है, उन स्किल्स को नेट्स पर प्रैक्टिस करना या वाइल प्रैक्टिस सेशंस उसकी प्रैक्टिस करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल ड्यूरिंग गेम इज अ डिफरेंट थिंग. सो टैक्टिकल कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एज पर द नीड ऑफ द गेम, एज पर द डिमांड ऑफ द कंडीशन, when that athlete is going to implement his skills and cope up with the conditions, that is called technical components, tactical components. Now the last is psychological component. When psychological components comes in the term of the sports, it involves mental toughness, decision making, judgment quality of the condition, and basically his own personality or his own mental equilibrium in adverse condition, how he is going to think, how he is going to implement his skills, or how he is going to cope up with the adverse conditions. This is the part of our mental toughness or our psychological training. So in the summary we can say that training involves physical fitness, that was the 5 physical fitness components: speed, endurance, strength, flexibility, and agility. After that, the technical components, that was the technical skills, fundamental and advanced skills of that particular game. After that, the tactical aspects, in that there was strategies, tactics of the game. And then the last aspect of was psychological aspect, in that there was mental toughness, decision making qualities, cope up with the strategies, and even emotional intelligence before match, during match, and after match, how a player is going to behave. That includes in the psychological training. Now we are going to discuss about the principle of sports training. When we are talking about the principle of sport training, there are a lot of principles in sports training. In that, the first principle is the principle of continuity. See, for not only in sports field, in any field, if anyone is willing to learn something, if anyone willing to automatize any skill in his behavior or in his body, a continuous practice is must. And that practice with a effective learning will, or with an effective teaching procedure is must. If we are going for a shortcut, or we are trying to learn the skills in a very short period, that is not possible. And suppose we can learn those skills in a very short period, but the automatization, or we can say the precision of that condition is not possible in our personality. So a continuous procedure of a continuity is must in the sports field, in the training of the sports field. The second principle of learning is the principle of transfer. जब हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर की बात करते हैं, दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स आर प्राइमरी लर्निंग अलॉन्ग विद द सेकेंडरी लर्निंग. मीन्स हमने जो कभी पहले सीखा हुआ है, उस लर्निंग को किस तरह से हमारी इस लर्निंग में जो अब हम नया सीखने जा रहे हैं उसमें किस तरह से इन्वॉल्व कैसे उसमें ट्रांसफर करते हैं. सी, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव होगा. ट्रांसफर पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है. मीन्स सपोज आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर. बास्केटबॉल में जो पासिंग है, जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, साथ में हमारे हाथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. जस्ट ऑपोजिट मैं जा रहा हूँ सीखने फुटबॉल. अब फुटबॉल में हमारी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बास्केटबॉल से फुटबॉल में आएगी, नो डाउट गिविंग डॉज एंड पासिंग
दैट इज़ अ मेंटल स्किल जो हम सीख सकते हैं, जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बट फिजिकल स्किल की जब हम बात करेंगे तो फुटबॉल में हमें हाथ का यूज़ करना नहीं होता है, एंड बास्केटबॉल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैंड ओनली। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मेंटल ट्रांसफर तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमें डॉस देना और बॉल को आगे बढ़ाना आ रहा है। बट जब हम फिजिकल लर्निंग की बात कर रहे हैं या फिजिकल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र बिल्कुल निगेटिव है। एंड कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर टोटल जीरो लर्निंग होती है। मीन्स हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम वापस स्नूकर खेलने जा रहे हैं या गोल्फ खेलने जा रहे हैं, तो दोनों की ट्रांसफ़र लर्निंग हमारे लिए जीरो हो जाती है वहाँ पर। इट मीन्स जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसको प्लेयर किस तरह से यूज़ कर रहा है, या उसको किस तरह से वो एक कंट्रोल्ड वे में नेक्स्ट लर्निंग प्रोसीजर में यूज़ कर रहा है, दिस इज ऑल्सो मस्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज जो ट्रेनी है या जो प्लेयर है उसको अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा लर्निंग। देन बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस मीन्स अ बैलेंस बिटवीन ओवरलोड, लोड एंड बियरिंग कैपेसिटी। मीन्स जितना हम लोड दे रहे हैं किसी भी प्लेयर को, उसके साथ वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, और साथ में कैसे कितनी उसकी बियर करने की कैपेसिटी है, साथ में वो ओवरलोड जो हमने उसकी परफॉर्मेंस को वापस इन्हांस करने के लिए वापस देना है या और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। देन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स, प्लस वन मोर बैलेंस like between physical activities, rest and sleep. That is also a very important topic. जब तक हम प्रॉपर डाइट का, रेस्ट, स्लीप का एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर हम उसका रेशियो नहीं बनाएंगे, एक पॉजिटिव रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पोर्ट्स फील्ड में। देन प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोड। जनरली हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग एक फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें ओवरलोड मेथड को हमेशा अवॉइड करते हैं कि ओवरलोडिंग कॉजेस इंजरी, ओवरलोडिंग कॉजेस स्ट्रेस, ओवरलोडिंग कॉजेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बट विदाउट ओवरलोडिंग मेथड वी कैन नॉट इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ अ प्लेयर. For example, suppose I am comfortable with a 100 kg weight. Suppose I'm a weightlifter and I'm comfortable with 100 kg weight. Now, and I'm performing my activity with 100 kg weight. बट अगर हम इस परफॉर्मेंस को अगर हमने बढ़ाना है, या हमारा जो कोच है या ट्रेनर है उसको हमारी इस क्वालिटी को बढ़ा करके और हमें हमारे परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें 105 kg का वेट या 102 kg का वेट या 110 kg का वेट, इट इज़ अप टू द कैपेसिटी ऑफ दैट प्लेयर कि हाउ ही इज़ ग्रेजुअली गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट प्लेयर. और धीरे धीरे इस ओवरलोड को बढ़ा करके ही या इस ओवरलोड के मेथड को फॉलो करके ही वो ट्रेनर या कोच प्लेयर की जो कैपेसिटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस लेवल है, उसको बढ़ा सकता है. तो ओवरलोड जो प्रोसीजर है दैट इज मस्ट फॉर अ ascending performance or for a improvement in the player. Then बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन. प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, मेजरमेंट एंड evaluation before training, during training and after training. It is must to take physical fitness test. It is must to take skill tests by which we can check or we can evaluate that the training procedure is in a positive way or a negative way or it is zero. जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बिफोर ट्रेनिंग व्हाट वाज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द प्लेयर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन एंड आफ्टर ट्रेनिंग, तब तक हम ये नहीं जज कर सकते हैं कि दैट ट्रेनिंग प्रोसीजर वाज फ्रूटफुल फॉर द प्लेयर और फॉर द एंटायर ग्रुप. सो जब हम टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें एक स्टैटिकल वैल्यू मिलती है, एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, जिससे बाय विच वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर एंड बाय विच वी कैन कम टू नो इज दैट ट्रेनिंग इज इन अ प्रोग्रेशन वे और दैट इज अ नेगेटिव वे. सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी. Rest and recovery is a very important phase of the physical activity of the training period. See, generally during training we are in habit of giving overload, we are in habit of burning a lot of calories,
प्लस मसल्स की ढेर सारी वेट एयर होती है, ढेर सारी मसल्स की रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। प्लस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेप्थ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ढेर सारी ड्रेन नहीं कह सकते हैं, बेसिकली यूटिलाइजेशन हो रहा होता है बॉडी में। तो इन सब चीज़ों की, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की कमी को कंप्लीट करने के लिए इट इज़ मस्ट टू टेक अ प्रॉपर साउंड स्लीप and a proper recovery period. Without rest, we cannot recover all these aspects of the physical fitness. एंड अगर हम लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वापस जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स प्लस जो मसल्स की हीलिंग है वो अगर हम प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आफ्टर सर्टेन टाइम जो एथलीट का जो परफॉर्मेंस है वो लेवल ऊपर जाने के बजाय नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा. सो प्रॉपर रेस्ट रिकवरी फेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. when we are talking about the principle of individual differences, it means that there is different need or different condition of the individuals. Suppose we are training a district level players, a team of district level players of a football team. कुछ ऐसे बच्चे जिनकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसे हैं जिनकी शूटिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसे हैं जो जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं बट एडवांस स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है. अब ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग सभी प्लेयर्स को एक जैसे हम ड्रिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ड्रिल्स करने के लिए बोल रहे हैं, तो इज दैट ट्रेनिंग मेथड इज फिजिबल फॉर देम? नो, सबके लिए वो सुटेबल नहीं होगा. अगर हम सबको ड्रिबलिंग ही करवाते रहेंगे तो जिसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी वो तो ईजिली कर लेगा, उसके लिए उस ड्रिबल का कोई यूज़ नहीं है, उस ड्रिल का कोई यूज़ नहीं है. जिसकी ड्रिलिंग नहीं अच्छी है उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस है. तो हमें वाइल मेकिंग एनी फिजिकल ट्रेनिंग शेड्यूल, इट इज़ मस्ट टू कीप द रिक्वायरमेंट इन द माइंड कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेयर, एंड इट शुड बी इंडिविजुअल बेसिस और इट शुड बी कीपिंग इन द माइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ दैट प्लेयर. हम एक जनरल वे में सब प्लेयर्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं. देन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन. जनरल प्रिपरेशन मीन्स लाइक सपोज इन अ टीम एवरीवन रिक्वायर्स द बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स. हर किसी को एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी की जरूरत पड़ती है. So in that condition, while training, a coach can implement a general drill for everyone. But with the same time, when he is going to train the skills, it should be in a specific preparation method. जब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैं वापस फुटबॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ या किसी भी एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, फुटबॉल एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ. क्रिकेट में हमने सभी को रनिंग करा दी उसकी स्पीड, एंड्योरेंस, स्टेमिना के लिए, वेट ट्रेनिंग करा दी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए. बट जब स्किल का ट्रेनिंग पीरियड आ रहा है तो इट शुड बी स्पेसिफिक प्रिपरेशन. जो बॉलर्स हैं उनको प्रॉपर बॉल की ड्रिल्स कराई जाए, जो बैट्समैन हैं उनको प्रॉपर बैटिंग की ड्रिल कराई जाए. बैटिंग में भी जो नंबर्स हैं, जिस बैट्समैन को जिस तरह की सर्कमस्टांसेस में बैट करना होता है, उनको उस तरह के बॉलर्स को फेस करा के उनको वो बॉल डलवाई जाए और उनको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए. तो दोनों ही मेथड्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. बट फॉर द जनरल फिटनेस वी कैन इम्प्लीमेंट अ जनरल मेथड, और फॉर द स्पेसिफिक प्रिपरेशन इट शुड बी ऑन स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड. देन बात करते हैं द नेक्स्ट प्रिंसिपल. दैट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. सी not only in teaching period or in coaching period, not only in training field or coaching field, it is very important method or it is very important factor in teaching field also, that active involvement should be there by the taught or by the trainee also. मैं एक बार कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सुन रहा था. उन्होंने बोला था कि टीचर्स आर लाइक और ट्रेनर्स आर लाइक अ ब्लैंकेट. वो कुछ भी
अलग से, जैसे ब्लैंकेट हमारी, जब हम ठंडक में ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं ना, तो ऐसा कुछ है कि ब्लैंकेट में कोई हीटर लगा हुआ है कि ब्लैंकेट हमें गर्मी प्रोवाइड करता है या वो गर्मी बना लेता है अंदर से। नो, ब्लैंकेट का जो वर्क है वो बेसिकली हमारी जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको बॉडी के पास मेंटेन रखना है, उसको वापस एटमॉस्फेयर जा करके रिलीज नहीं होने देता है, जिससे हमारी बॉडी गर्म बनी रहती है अंदर की तरफ। द सेम थिंग विद द टीचर। टीचर की जो क्वालिटी है, टीचर बाहर से किसी प्लेयर में कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस दैट प्लेयर और दैट ट्रेनी इज नॉट विलिंग टू लर्न। जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो कोच है या जो ट्रेनर है, वो उसको और फाइन करता है, उसको शार्प करता है, ठीक है। सो द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथलीट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमें ऐसा नहीं कि हमने क्लास में एंट्री ली या हमने अपने ग्राउंड के सेशन आए, हमने अपना ड्रिल कराया और चले गए, फिर वापस हम जब तक कि वो एथलीट या वो प्लेयर या जो स्टूडेंट है वो अगर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो विलिंगली उसमें। एंड वन मोर थिंग, हमें जो उनकी सजेशंस हैं, जो उनकी कंफर्टेबिलिटी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिसने लर्न करना है वो कई बार अपने अच्छे शॉर्टकट्स निकाल देते हैं कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए। तो हमें कई बार उनकी भी जो सजेशंस हैं या उनके भी जो आइडियाज़ हैं वो लेने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड अपॉन द कोच और टीचर कि इफ इट इज़ अप टू देम कि इफ दैट प्रोसीजर इज फ्रूटफुल, गो विद दैट। If that is not fruitful, it is up to the coach or teacher that please avoid those. Just tell them कि this method is not fruitful for us. But active involvement is must. Even in Thorndike's learning laws जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर थॉर्नडाइक ने बोला हुआ है कि the first law of learning is law of willingness, law of readiness. If that athlete is not ready to learn, no one can teach anything, and learning procedure would be zero there. So in that condition, law of active involvement or the principle of active involvement is must from the both side. Then बात करते हैं the principle of variation. Variation की जब हम बात करते हैं तो जो भी हम सिखा रहे हैं किसी एथलीट को, जस्ट मिनट, ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग टू फॉलो सेम प्रोसीजर फॉर एवरी डे। जनरली क्या होता है कि कोचेस ग्राउंड पर आए, ओके स्टार्ट 10 राउंड्स। अभी अगर हमें वार्म अप ही करना है तो वो रोज के 10 राउंड्स आफ्टर सर्टेन टाइम एथलीट को भी उसमें एक बोरियत आने लगे कि नो, दिस इज अ वेरी बोर्ड थिंग। बेसिकली आवर मोटो इज मेक देम रन। उनको हमने दौड़ाना है एक पेस पर। द बेस्ट थिंग इज ओके, लेट्स टुडे वी कैन प्ले फुटबॉल। फुटबॉल का क्या तरीका है, हमने भी फुटबॉल में दौड़ना ही बॉल के पीछे, रनिंग भी इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पर हमारी कुछ आई हैंड लेग कोऑर्डिनेशन भी ट्रेंड हो रहा है और साथ में हमारा जो एंडोरेंस ट्रेनिंग है, हमारी जो स्पीड ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो जा रहा है। सो द ट्रेनिंग मेथड शुड बी फुल ऑफ वेरिएशंस। ऐसा ना हो कि जो हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत बोरिंग हो या बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए किसी भी एथलीट के लिए। जब कुछ हम नया ट्राई करते हैं तो वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और एथलीट हमेशा उसमें मन लगा करके उसको सीखने की कोशिश करता है। देन बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन बिफोर ट्रेनिंग और बिफोर एनी सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन। प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन इज मस्ट। बिना कूलिंग डाउन और बिना वार्म अप के अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट कॉजेस इंजरी, दैट कॉजेस लो परफॉर्मेंस। एंड सेकेंड थिंग, विदाउट अ एक्टिव प्रिपरेशन और विदाउट प्रॉपर वार्मिंग अप, दैट एथलीट कैन नॉट इवन गिव हिज 100% इन द गेम। सो वार्मिंग अप इज अ एक्टिव प्रिपरेशन of involvement in the games. That is very important point. The same thing is with cooling down, without limbering down or cooling down. Suppose after game we are going to take rest. ऐसे कंडीशन में हमारी जो हार्ट बीट बहुत रैपिड चल रही होती है, बहुत क्विकली वो डाउन आती है। द सेम थिंग इज विद मसल्स। जो मसल्स में बहुत ज़्यादा वार्म हो रही होती हैं, वो सडनली जब ठंडी होंगी तो ऐसे कंडीशन में मसल्स के क्रैम्प होने कंडीशन बढ़ जाती है, मसल्स की इंजरीज का चांसेस बढ़ जाती हैं। तो हमने क्या करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से उसको स्लोली डाउन करके नीचे लाना है। तो
इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कूलिंग डाउन. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर in the field of sports or sport training. After that, we are going to discuss about the principles of ensuring result. Principle of ensuring result is depend upon the test measurement and evaluation procedure. जब हम टेस्ट मेजरमेंट ले करके और एक प्रॉपर इवेल्युएशन करते हैं किसी भी एथलीट का कि दैट ट्रेनिंग मेथड और दैट कोचिंग मेथड इज गोइंग इन असेंडिंग वे और इट इज गोइंग इन डिसेंडिंग वे, इट इज अप टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर. देन बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी. साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि इट इज़ अप टू द डिमांड ऑफ द कंडीशन और इट इज़ अप टू द कमिंग कॉम्पिटिशंस और टूर्नामेंट्स. इट शुड बी इन अ वे ऑफ और इट शुड बी इन अ कंडीशन ऑफ माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल और मैक्रोसाइकिल. मीन्स जो टूर्नामेंट की कंडीशन है या जो डिमांड ऑफ द कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो ट्रेनिंग मेथड होगा वो मेजो साइकिल का होगा, मैक्रो साइकिल का होगा कि मैक्रो साइकिल का होगा. द लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग ड्यूरेशन इट शुड बी डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी. नाउ अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ वार्मिंग अप. अभी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में बात कर रहे थे बिकॉज विदाउट जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे होते हैं उसमें वार्मिंग अप सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है. पहले हम लोग वार्म अप करते हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वार्मिंग अप इज द फिजिकल एंड मेंटल और मस्कुलर एक्टिवनेस टू बिफोर इन्वॉल्विंग इन एनी फिजिकल एक्टिविटी. बेसिकली फिजिकल प्रिपरेशन से हम एक जो प्रिपरेशन होती है हमारी या जो हमारी एक रेडीनेस होती है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बिफोर ट्रेनिंग मेथड और बिफोर द गेम, उसको हम लोग ट्रेनिंग मेथड, उसको हम लोग वार्मिंग अप बोलते हैं. बेसिकली जो पर्पस होता है वार्म अप का वो मसल्स को रिलैक्स करना, मसल्स को बेसिकली ज़्यादा थोड़ी से लोड दे करके या प्रेशर दे करके उनमें उसको स्टिमुलेट देना या उसको स्टिमुलेट करना किसी भी एक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि उसमें जैसे हम मसल्स प्रेशर देते हैं तुरंत ही वहाँ ब्लड प्रेशर फास्ट हो जाता है. हार्ट बीट थोड़ा बढ़ाना चाहिए वार्म अप में, जिससे कि हमारी जो नीड ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है उसको हमारा हार्ट रेडी हो जाए उसको उस ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए. प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस वाइल वार्मिंग अप लाइक हमारा जो एक फिजिकल जो हमारा साइकोफिजिकल एक प्रिपरेशन है वो हो जाता है किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी द engage in exercise or practice especially before entering in the game, that is called warming up. One more definition is according to Collins dictionary, that is preparatory exercises done to warm up the muscles, that is warming up. Means जो भी हम activities before physical activities और before games perform करते हैं अपने physical और mental readiness के लिए, that is called warming up. When we are talking about warming up, there are two types of warming up: active warming up and passive warming up. पैसिव वार्मिंग अप ऐसी कंडीशन ऐसी टेक्निक्स हैं वार्मिंग अप की जिसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ना कि खुद फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो. अब ऐसे सोर्सेज क्या हो सकते हैं लाइक हैवी वेयरिंग, ज़्यादा वार्म कपड़े पहनना, ज़्यादा हैवी कपड़े पहनना, ड्रिंकिंग हॉट वाटर. इसके अलावा और भी जो प्रोसीजर्स हैं लाइक मसाज, सन बाथ, स्टीम बाथ, ये कुछ ऐसे या सनलाइट या कुछ ये सब ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं बाय विच वी कैन गेट वार्म्ड अप बाय एक्सटर्नल सोर्सेज. देन बात करते हैं हम लोग एक्टिव वार्मिंग अप. ये थे हमारे पैसिव वार्मिंग अप. अब हम बात करते हैं एक्टिव वार्म अप की. एक्टिव वार्म अप उस वार्म अप को बोलते हैं इन विच द एक्टिव फिजिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, like running, jogging, jumping or any other physical cycling. A lot of activities are there, stretching exercises, a lot of things are there. These activities are called active warming up.
जब हम एक्टिव वार्मिंग अप की बात करते हैं बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप एंड सेकंड होता है जनरल वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप बेसिकली आर दोज वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस बाय विच वी आर गोइंग टू ट्रेन आर जनरल फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, दैट इज फिर वही 5 पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। These are some few very common exercises: running, jogging, aerobics, yoga और some jumping exercises, जिनसे कि हम अपनी जो बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स उनको ट्रेन करते हैं। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप की। स्पेसिफिक वार्मिंग अप इज फॉर स्पेसिफिक स्किल्स, लाइक हर एक गेम की अपनी स्किल्स अलग होती हैं और उन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए जब हम कुछ स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। लाइक इन क्रिकेट हम डमी जब ड्रिल्स कर रहे होते हैं बॉल के साथ में, या मेडिसिन बॉल थ्रो करके अपने हाथ का वार्म अप करते हैं, या मेडिसिन बॉल से बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ढेर सारे डमी एक्सरसाइजेस हैं या ऐसे ढेर सारे डमी वार्मिंग अप हैं जो हम बेसिकली किसी भी गेम के लिए उसकी पर्टिकुलर स्किल को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। अब बात करते हैं जनरल वार्म अप के मेथड्स क्या हैं। जनरल वार्म अप के मेथड्स ढेर सारे हैं, जैसे कि जॉगिंग, सिंपल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेटेज और स्ट्रेचिंग, स्प्रिंट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जब हम स्पेसिफिक वार्म अप की बात करते हैं, दैट दोज मेथड्स डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द स्किल्स और दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्किल ऑफ द गेम। बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप इज वेरी important for the sports persons. The first thing is warming up rises the temperature of the body. टेम्परेचर बॉडी से हमारा मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे हमारी जो मसल्स हैं, हमारे बॉडी है, उसके अंदर एक स्टिमुलेशन आ जाता है किसी भी फिजिकल वर्कआउट को करने के लिए, किसी भी फिजिकल डिमांड को करने के लिए, को मीट आउट करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाती है। देन बात करते हैं तो डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मसल्स। विस्कोसिटी का नेचर क्या होता है, किसी भी जो थिन एक लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जब मसल्स की विस्कोसिटी कम हो जाती है तो उनका मूवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। विस्कोसिटी एक ऐसी ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की या किसी भी क्वालिटी की जो किसी भी ट्यूब में उसको फ्लो करने से रोकती है। तो बेसिकली अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मसल्स हैं वो इजिली एक दूसरे पर ग्लाइड करके उसके जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उस क्वालिटी को इन्हांस कर देती है, उसको बढ़ा देती है। देन बात करते हैं टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। हम जब फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब हम फिजिकल वार्म अप कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं या जो हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में वर्क करते हैं किसी भी स्टिमुलस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में, उसकी इम्पल्सेस बढ़ जाते हैं, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और हमारे ब्रेन तक बहुत क्विकली ये मैसेजेस पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। देन बात करते हैं टू रिड्यूस मसल कैपिलरीज रेजिस्टेंस। मसल्स की में जो ब्लड कैपिलरीज होता है, इसमें ब्लड को फ्लो करने के जो रेजिस्टेंस है वो जैसे ही हम वार्म करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ब्लड का फ्लो स्मूथ और फास्ट हो जाता है। देन बात करते हैं टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू टिश्यूज। बेसिकली बताया मैंने, जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं, जब हम कोई भी वार्म अप कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड जो सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इससे हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ जाएगा, लैक्टिक एसिड बहुत बाद में बनेगा। हमारी बॉडी में इंजरीज बहुत कम होने चांसेस होते हैं। जब हम वार्म अप होते हैं तो हम रेडी होते हैं किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए। प्लस वार्म अप से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो मैक्सिमम रेंज ऑफ द जॉइंट ऑफ द मूवमेंट है वो अपने आप बढ़ जाता है। प्लस मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
हमारी जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, अगर हम स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं तो उसकी वजह से उसके जो ऑटोमेटाइजेशन कैपेसिटी है, जो उसको स्किल एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इससे हमें बेसिकली किसी भी स्किल को परफॉर्म करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। देन हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ वार्म अप। फिजियोलॉजिकल बेसिक्स में बात करते हैं। पहली बात तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। देन जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी जो नर्व इम्पल्सेस बढ़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कवर करने में हेल्प कर देगी, मतलब ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन सप्लाई होगा हमारी मसल्स में। दीज आर द बेसिकली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वार्मिंग अप। नाउ अब बात करते हैं हम लोग व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप। बेसिकली इट शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मीन्स जब भी हम कोई एक्टिविटी वार्म अप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस से टफ एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। इसका जो एनहांसमेंट है बहुत ग्रेजुअली होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में ही कोई टफ एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो मसल्स हैं वो रेडी नहीं होती हैं और इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टार्टिंग में पहले स्लो एक्सरसाइजेस या जो बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं वो परफॉर्म करते हैं और ग्रेजुअली जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी उसको बढ़ाते हैं। देन बात करते हैं एक्सरसाइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब भी हम रनिंग जॉगिंग करने के बाद में वार्म कर रहे होते हैं तो हम अपने हर एक बॉडी पार्ट को उसके मूवमेंट, जो माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं या उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वो करके हर एक मसल्स को प्लस जॉइंट्स को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दोनों होते हैं, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो या आइसोकाइनेटिक हो, दोनों ही इन्वॉल्व करके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देन एज एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। एज एंड स्पेसिफिक जेंडर वार्मिंग अप। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा हमें अपनी एज कैटेगरी और जेंडर को ध्यान में रख के करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा रफ और टफ एक्सरसाइजेस और एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि सूटेबल नहीं किसी एज ग्रुप के लिए, अगर उसको हम परफॉर्म करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो इंजरी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले ही थक जाएंगे। तो इट शुड बी इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर और इट शुड बी इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, कि जिससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाए, वो बॉडी हमारी एक्लिमेटाइज हो कंडीशनिंग करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, बट हम ज़्यादा थके ना। ओके, देन बात करते हैं व्हाट इज लिम्बरिंग डाउन, व्हाट इज कूलिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन मीन्स टू शटल डाउन द बॉडी टेम्परेचर एंड द मसल्स आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज़। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये ज़रूरी है कि आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी वापस हम बहुत ग्रेजुअली इन जो इंक्रीज्ड कंडीशन में हमारी मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो एनाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनको हम ग्रेजुअली डाउन करें और फिर बॉडी नॉर्मल स्टेट पर आए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस करें, कुछ हम नॉर्मल एक्सरसाइजेस करके बहुत ही जो स्लो होती हैं उनको करके, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वापस हम नॉर्मल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कूलिंग डाउन। बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं या बहुत स्लो डाउन होती, स्लो जॉगिंग है या इवन समटाइम्स स्विमिंग हो सकता है या एरोबिक्स है, जिससे हम मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में जितने बिग मसल्स हैं लाइक हैमस्ट्रिंग, चेस्ट मसल जिसको हम लोग पेक्टोरल मेजर और माइनर बोलते हैं, या ग्लूटस है पैर की, अदरवाइज क्वाड्रिसेप, और इसके अलावा जो हमारी बैक की शोल्डर मसल्स हैं और हमारी बैक की लेस्टिमस डॉर्सी है, ये ऐसी मसल्स हैं जहाँ पर क्रैम्प चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके हम इनको रिलैक्स कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक वापस बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना, जो भी बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं उसको एलिमिनेट करना बॉडी से, उसको बॉडी से बाहर करना। इसके अलावा जो टेंशन हो रही है हमारी मसल्स पर या हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस या ड्यूरिंग मैच, उसको कम करना, उस टेंशन को रिलीज करना। देन डिक्रीज द चांस ऑफ डिजीनेस
एंड फेंटिंग। अगर बॉडी सडनली जो हाई टेम्परेचर वहाँ से डाउन आ रही है या मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो डेजनेस के और फेंटिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम ग्रेजुअली बॉडी के टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। देन ऑक्सीजन का सप्लाई ग्रेजुअली जो ऑक्सीजन डेप्थ हुई है ड्यूरिंग मैच और ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मसल्स डू नॉट टू रिमेन स्टिफ। मसल्स में लैक्टिक एसिड अगर फॉर्मेशन वहाँ हो गया तो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और पेन आता होता है वहाँ पर। तो जब हम ग्रेजुअली उस मसल को मसाज से या स्ट्रेचिंग करके वापस रिलैक्स कर देते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने नहीं पाता है और ऐसी कंडीशन में हमारी मसल ज़्यादा स्टिफ नहीं होती, ज़्यादा टाइट नहीं होती हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। This is the first part of the video of this chapter. In second part, we will discuss about the skill, technique, tactic, and strategy, and a very important topic, that is doping. Doping is a very important topic in sports field as well as in our personal life also, because nowadays the surroundings is suffering too much with doping, with intoxicants or some other social ills. So that topic is very important for us. In this topic I'm going to cover the content. Again I'm repeating technique, tactic, strategy, skill, and then doping in the next video. Thank you so much. वापस आप लोग जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो एंड वॉच फुल वीडियो. थैंक यू सो मच.